Hello friends, welcome to Aeon Classes 1.0, a traditional way of teaching and learning. Today's topic is from class 10th, that is chapter 11, Human Eye and the Colorful World. As you know, nature gives us a beautiful or wonderful thing that we are able to see the phenomenon of the nature and the events that happen in the nature. That is eyes. प्रकृति ने हमको बहुत अच्छी चीज़ दी है, एक नायाब तोहफा दिया है आंखें, ताकि हम संसार में होने वाली या हमारे प्रकृति जगत में होने वाली सभी घटनाओं को देख सकें, उनका आनंद ले सकें. बट कैन यू नो हाउ द आईज कैन वर्क? कैन यू नो why the light sensitive to our eyes, how we see the images, how we are response to that. Today, first of all, we know about the structure of eye and how the eyes can function or eye can do their function, or how we able to see the object. Let's start with the topic, the human eye. As you see on my board, there is a structure of eye. There is a structure of eye. First, outer part that we have to see on the human face, animal faces. जैसा कि हम लोग इंसान के चेहरे पे या जानवरों के चेहरे पे हम लोग देखते हैं, हमको जो आंखें दिखाई देती है, that is like that. That is the outer part. Here, it is the inner part that we are not able to see, but it has a complex structure. बाहर से हमको आंखें देखने में बहुत ही सिंपल दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसके एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, तो we are analyzes they are the different parts, and these different parts are the different functions that make us to see the object. How they make us to see the object? Let's start with the first part of the eye, that is called cornea, and it is the outermost part of the eye. Outermost part of the eye, that is very transparent. ये transparent होता है, and it allows the light to enter into the eye. देखो भाई, कोई भी चीज होती है, लाइट जब ही अंदर आ सकती है जब वो ट्रांसपेरेंट है. तो हमारे पास जो कॉर्निया है, हमारी आईज में जो कॉर्निया है, that is a transparent substance. The transparent substance is make the light allowed to pass through it. So here the cornea is also a layer that allow the light to pass into the eyes. Clear? Next one, the second one is the iris. Iris. यहाँ तक iris पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारी आंखें जो हमको दिखाई देती है outer part में, तो उसका सबसे पहली जो लेयर होती है that is called cornea. तो cornea देखो यहाँ पे cornea है, ये भी cornea. Clear? Second one, iris. As you see deeply inside the eyes of anyone, आपने कभी अगर आंखों में गहराई तक देखा है, you have see the some finger like projections or some stick like projections, that is called muscles of eye. What are the function of that muscles? Sometimes when we see the bright thing, our eyes become dull or eye become, जिसको हम बोलते हैं ना, हम आंखों को थोड़ा सा नीच लेते हैं, डिलाइट, हमारी आईज डिलाइट हो जाती है. व्हाई दैट हैपन? दैट हैपन ड्यू टू दीज मसल्स. दीज मसल्स आर कॉल्ड आइरिस मसल्स. व्हाट दे आर से? दीज आर कॉल्ड आइरिस मसल्स. व्हाई दे डू सो? ये ऐसा क्यों करती है? दे डू सो ड्यू टू दैट लाइट कैन नॉट, मच लाइट कैन नॉट एंटर टू आवर आईज. हमारी आईज में बहुत ज़्यादा लाइट ना जाए, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव पार्ट. हमारी आइज का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है आई, और अगर हमारी आइज में बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी, इट कैन डैमेज द सेल्स, इट कैन डैमेज द फोटो रिसेप्टर सेल्स. ऐसी सेल्स जो लाइट को कैच करती है, उनको जितनी एनर्जी चाहिए, दैट कैन नॉट बी एबल टू मोर लाइट टू कैप्चर इन इट. सो द नेचर, और कह सकते हैं द बॉडी गिव अस ए मस्कुलर पार्ट दैट control the amount of light enter into the eye.
जो लाइट के एंटर को या लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर सके। दैट कंट्रोलिंग यूनिट इज कॉल्ड आइरिस मसल्स। यही आइरिस मसल्स है। जैसे इसके अंदर आप फिगर में देख रहे हो, मैंने ये लाइन सी खींच रखी है इस तरह से। दीज लाइंस कैन डिलाइट और वी कैन से दैट एक्सपेंड और डिलाइट, एक्सपेंड और रिलैक्स, एक्सपेंड और रिलैक्स, और कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। They, if they become contract, it means the much amount of light is focused on the eye. बस ज्यादा अमाउंट की लाइट अगर आ रही है, it become contract. When we see in the dim light, it become delight. ये फुल जाती है, ये ज्यादा खुल जाती है। It makes the opening more, और it makes the opening wide, opening wider. तो that opening is called the pupil. वो opening क्या है? Pupil है। Cornea transparent part हो गया। सेकेंड वन आइरिस मस्कुलर पार्ट हो गया। थर्ड वन प्यूपिल ओपनिंग हो गई, ओपनिंग हो गई तो वो क्या हुआ, लाइट अंदर एंटर करेगी। अब कितनी लाइट अंदर एंटर करेगी, दैट इज सीन बाय द आइरिस मसल्स। तो आइरिस मसल जस्ट लाइक ए बॉडीगार्ड ऑन द गेट और गेट कीपर, जस्ट लाइक बॉडीगार्ड और गेट कीपर। तो गेट कीपर है, कितने लोग अंदर आएंगे इसका ध्यान रखता है। इसी तरीके से जो आइरिस मसल्स है वो भी ये ध्यान रखती है कि लाइट कितनी अंदर आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए, और किस वक्त ज्यादा आनी चाहिए, किस वक्त कम आनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द एक्वस ह्यूमर। जो अगला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर किस तरह से काम करता है? एक्चुअली एक्वस ह्यूमर इज फील्ड बिटवीन ए पार्ट ऑफ द दैट कॉर्निया एंड दैट लेंस, एंड दैट लेंस। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। उसी को हमने क्या नाम दिया है, एक्वस ह्यूमर नाम दिया। क्लियर? यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको रब करता हूँ ताकि मेरे को इजीली या आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो आउटर पार्ट का काम खत्म हो गया, क्योंकि आउटर पार्ट में हमको सिर्फ तीन चीजें दिखाई देती है। दैट इज कॉल्ड कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट पार्ट, iris, the muscular part that help in the entering of eye light into the eye, and the pupil, the hole or gateway from which the light is enter into the eye. वो गेट जहाँ से लाइट अंदर आ सके। दूसरी चीज मसल्स पार्ट that like a guard, or this is called iris muscles, and the last one that is first one that is cornea, that is a transparent layer. Now come to the fourth one, that is the aqueous humor. एक्वस ह्यूमर एक्चुअली होता क्या है? एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड सब्सटेंस है दैट गिव ए आई ए मॉइस्चराइज, जो आंखों को एक मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है अंदर से। कॉर्निया के और लेंस के बीच में पाया जाता है। इट इज फाउंड बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। सेकेंड थिंग, इट गिव द मॉइस्चराइजेशन लाइक द टीयर्स। टीयर्स की तरह अंदर से लेंस को ये कह सकते हैं हम लोग, हमारे जो मसल्स है उनको मॉइस्चराइज करता रहता है। Third thing, it gives the denserness to the medium. We know that the light is traveling in a medium. Medium में light travel करती है, तो it help in the bending of light. ये light को bend करने का काम करता है toward the lens, ताकि lens तक light easily पहुंच सके। हमारी eyes में light आती है, light आती है तो कॉर्निया की शेप भी इस तरह की है, हमारी जो सर्कुलर शेप है या हेमिस्फीयर शेप है, ताकि सेमी सर्कुलर से हेमिस्फीयर मान सकते हैं, होलो हेमिस्फीयर, जिसमें लाइट आती है। लाइट आने के बाद उसको बैंड होना चाहिए, तो इट विल बी बैंड मोर, ज़्यादा बैंड हो, इसलिए हमारी आइज के अंदर रिफ्रैक्शन अच्छा हो, इसलिए हमारी आइज में एक डेंसर मीडियम होता है। दैट डेंसर मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड ए एक्वस ह्यूमर। क्लियर? नाउ एक्वस ह्यूमर का एक काम और है। एज यू सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ द आइज, आइज का हम लोग बहुत सारे अलग अलग कलर देखते हैं, जैसे someone has the brown eyes, someone has the black eye, someone has the hazel eye, someone has the dark brown eye, someone has the green eyes. How it is possible? How that are possible? First of thing, this is depend on the genetics matter. Genetics, genes के ऊपर depend करता है how they get the eyes from the, how they get the pigmentation from their back. तो pigmentation is contained into the aqueous humor. वही पिगमेंटेशन किस में होता है? हमारे एक्वस ह्यूमर में होता है, और एक्वस ह्यूमर ही आई के कलर को डोनेट करता है। क्लियर हो गया है? यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। फर्स्ट वन कॉर्निया, सेकंड वन आइरिस, थर्ड वन आपके प्यूपिल, एंड फोर्थ वन द एक्वस ह्यूमर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेलेरी मसल्स। सेलेरी मसल्स आर द मसल्स
कैसी मसल्स है? ये भी मसल्स है लाइक जस्ट लाइक ए iris muscle, but iris muscles are the flexible muscles, while ciliary muscles are not very flexible but somewhat flexible that it can hold the lens at their position. हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, दैट इज 6 क्रिस्टलाइन लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए, अपनी जगह पे पकड़ के रखने के लिए नेचर ने आईज के अंदर 2 होल्डिंग सिस्टम बनाए हैं दैट कीप द आई ऑन देयर वे या कीप द लेंस एट देयर प्लेस. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वियर द ग्लासेस. हम लोग चश्मा पहनते हैं तो ग्लासेस के अंदर फ्रेम होता है. तो फ्रेम का काम क्या है? अपने उसके अंदर जो लेंस, फिटेड लेंस है, उसको अपनी जगह पे बनाए रखना ताकि यू हैव टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. जैसे डिफेक्ट ऑफ आईज में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन डिफेक्ट होते हैं. तो वी हैव टू वियर द ग्लासेस या समटाइम वी हैव टू वियर द ग्लासेस इन द सनलाइट. धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए हम लोग चश्मा पहनते हैं, ऐनक पहनते हैं. तो ये क्या है? ऐसे डायरेक्ट थोड़ी हम ग्लास लगा लेते हैं आंखों के ऊपर. वी कैन नॉट डू दैट. वी हैव टू यूज द फ्रेम. हम लोग फ्रेम खरीदते हैं, फिर उसमें लेंस फिट करवाते हैं, उसके बाद हम उसको पहनते हैं. एज यू सी द सन ग्लासेस होता है, उसमें फ्रेम आता है, उसमें ग्लास फिट होता है, यू हैव टू वियर इट. तो दैट फ्रेम इज, या कह सकते हैं दैट वर्क, फ्रेम वर्क इज डन बाय आवर सिलरी मसल्स. वही फ्रेमवर्क हमारे सिलरी मसल्स काम करती हैं और लेंस को अपनी जगह पे फिट रखती हैं. दूसरी चीज, ये फिट का काम. दूसरी चीज, इट विल बी समवॉट फ्लेक्सिबल. मैंने कहा था कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होती है. व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट फार, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर देखते हैं, दूर देख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए? फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए. कैसी फोकल लेंथ चाहिए? ज़्यादा फोकल लेंथ चाहिए. और ज़्यादा फोकल लेंथ हमको कब मिलेगी? जब लेंस मोटा होगा, जब लेंस थिक होगा. तो लेंस थिक होगा तो थिक कर देती है, उसको पास में ले आती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर पास में ले आती है. कौन ले आती है? सिलरी मसल लेंस को पास में ले आती है ताकि वो मोटा जाता है. वी हैव टू सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली. इफ वी वांट टू सी द नियर ऑब्जेक्ट हम नजदीक देखना चाह रहे हैं, तो हमारी आईज किस तरह से काम करेगी? हमारी आईज के अंदर जो सिलरी मसल्स है वो थिन हो जाती है, वो दूर हो जाती है. दूर होने के बाद लेंस होता है वो पतला हो जाता है. जस्ट लाइक दैट, इट इज जस्ट लाइक दैट, इट विल बिकम थिन. तो थिन हो गया. थिन होने से क्या है? फोकल लेंथ कम हो जाती है. वी आर एबल टू सी नियर, हम पास में देख सकते हैं. तो इन दिस वे द सिलरी मसल्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द, ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, थिननेस एंड थिकनेस ऑफ द लेंस एंड होल्ड इट एट दैट पोजीशन. ओके, नाउ द 6th क्रिस्टलाइन लेंस, जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा था. क्रिस्टलाइन लेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्रिस्टलाइन लेंस होता क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस जो है एक सिंपली लेंस है. इट इज ए कॉन्वेक्स टाइप लेंस. कैसा लेंस है? हम लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में लेंसेज के बारे में, जिसके अंदर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों थे. कॉन्वेक्स लेंस दैट इज ए कन्वर्जेंट लेंस. आवर आईज हैज ए लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, दैट इज आल्सो ए कन्वर्जेंट लेंस. सो इट इज ए कॉन्वेक्स नेचर. क्लियर? क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? लाइट को और बेंड करने की कोशिश करता है, उसको फोकस करता है एट द फोटोरिसेप्टर सेल्स. फोटोरिसेप्टर सेल्स आर द सेल्स व्हिच कैन कैप्चर द लाइट और द फोटोसेंसिटिव. क्लियर? तो इट हेल्प्स इन मेकिंग द इमेज बनाने में या उसको शार्पली फोकस्ड करने में हेल्प करता है. आईज के लेंस उसको हेल्प करता है. लाइट की वजह से जो ऑब्जेक्ट की इमेज उस पर बनेगी दैट इज फोकस्ड और कैन बी क्लियरली मेक इनटू द आई. नेक्स्ट वन 7th वन, दैट इज द विट्रस ह्यूमर. अब भाई हमने ये सब चीज पढ़ी, तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आंख में चोट भी लग जाती है. कई बार चोट लग जाती है तो हम लोगों को शॉक लगता है. तो आई जो ऑर्गन है, कई बार हमारे हाथ पैरों को चोट लगती है तो शॉक भी लगता है. दैट शॉक, वो शॉक कैसा होता है? इफ समवन इज इंजर्ड आवर आई या समथिंग इज गो इनटू आवर आई, वी हैव टू रब इट. हम उसको रब कर लेते हैं, हम उसको आंखों में लग जाती है, उसको हम मसलते हैं. या हम सिंपली कह सकते हैं वी हैव टू हील इट, हम उसको सहलाते हैं. समटाइम समथिंग इज ड्रॉप इन आवर आईज, वी गेट द शॉक. हमारी आईज में शॉक लग जाता है. ये वी हैव टू क्रिएट इरिटेशन, वी हैव टू feel the irritation in our eye. That irritation is just like a shock or just like a put a stone into the still water. That is also produced in our eyes. So these
This is vitreous humor. Vitreous humor is also a liquid medium, just like aqueous humor. Aqueous humor की तरह ही vitreous humor है, जो क्या है, एक liquid medium है. लिक्विड मीडियम होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जब लहरें उठती हैं, ये कह सकते हैं जब शॉक वेव्स आती हैं, तो इट विल एब्जॉर्ब इट. वो क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारी आईज कोलैप्स, खिसकने से या फिर गिरने से, या कह सकते हैं वी हैव श्रिंक सिकुड़ने से बच जाती है. कई बार होता है आँख में चोट ज़्यादा तेज लग जाती है, तभी हमारी आँख सिकुड़ती नहीं. तो दैट श्रिंकिंग ऑफ आई इज अवॉइडेड बाय दैट vitreous humor, or protect our eyes from the shrinking as well as from injury or absorb the shock wave is by the vitreous humor. ये तो एक काम हो गया इसमें. सेकेंड वर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द डिफरेंट न्यूट्रिशन सब्सटेंस और गैसेज टू आवर आई. फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज जस्ट लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. इट हेल्प इन द सप्लाइंग ऑफ न्यूट्रिशन टू द मसल्स और टू द सेल्स ऑफ आवर आईज की जो सेल्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो कंसिस्ट सम ब्लड वेसल्स, सम ब्लड वेसल्स भी होती हैं इसके अंदर. विट्रस ह्यूमर ऑल्सो हैविंग द ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस विटामिन ए. हमारे विट्रस ह्यूमर में ही प्रेजेंट होता है विटामिन ए, और जो विटामिन ए है वो हमारी आईज के लिए क्यों जरूरी है, एज यू वेल नोन, आप लोग ये जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए कितनी जरूरी है. बिकॉज इट हेल्प इन इंक्रीज आवर साइट और मेंटेन आवर साइट प्रॉपर्ली. विजन को अच्छा रखने के लिए हमको विट्रस ह्यूमर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. विटामिन ए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, विट्रस ह्यूमर के अंदर प्रेजेंट होता है. क्लियरली इट्स वर्क इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज वन रेटिना. What is the function of retina? रेटिना क्या है? हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग मोस्टली ज़्यादातर हम लोग सब जानते हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब लोग पिक्चर देखने के लिए हॉल में जाते हैं. यू हैव टू सी इन द होम थिएटर ऑल्सो, यू हैव सी ऑन द सम वॉट सम कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो. वॉट यू हैव टू सी, आप लोग हमेशा देखते हैं, देयर इज सम प्रोजेक्टर, देयर इज सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट विल मेक द फोकस ऑन द वॉल. तो उसके वो वॉल के ऊपर जो पिक्चर बनती है, तो भाई हमारी आईज के ऊपर भी पिक्चर बन रही है. हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसकी इमेज हमारी आईज पे बनेगी, और जिस पार्ट पे बनेगी, जिस वॉल के ऊपर, जैसे हमारे पीछे अगर सिनेमा हॉल में जाते हैं तो यू हैव सी द प्रोजेक्टर इज पुटेड बिहाइंड. हमारे ऊपर प्रोजेक्टर चलता रहता है पीछे की तरफ. तो प्रोजेक्टर जब चल रहा है पीछे की तरफ, तो वहाँ से लाइट आती है और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो लाइट गिरती है. तो यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट और सी द इमेज. तो वही इमेज आपको किस पे दिखाई दे रही है, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. दैट स्क्रीन और दैट वॉल इज कॉल्ड रेटिना. और इन हॉल और इन सिनेमा हॉल वी हैव सेड द कर्टेन, बड़े पर्दे के ऊपर पिक्चर चल रही है. और इसी तरह से हमारे पास भी एक छोटा सा पर्दा है, दैट छोटा सा पर्दा स्मॉल कर्टेन, और ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटिना. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना. अब रेटिना काम कैसे करता है, यही सबसे बड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है, ये कह सकते हैं काम है, कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रेटिना काम कैसे करता है, होता क्या है रेटिना में. कैसा, सबसे पहले जी मैंने पहले एक वर्ड लिया था, फोटो रिसेप्टर सेल्स. एक्चुअली रेटिना जो होता है उसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जो फैसेस फोटो सेंसिटिव होता है. When a light goes into our eye, it produces a image. That image is put, और कह सकते हैं that image is formed on the photoreceptor cells. वही इमेज किस पे बनती है, फोटोरिसेप्टर सेल्स पे बनती है. फोटोरिसेप्टर सेल्स पे दो तरह के फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द रॉड सेल्स, सेकंड वन इज द कोन सेल्स. कौन कौन से होते हैं, रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स. अब रॉड सेल्स जो होती हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स. ध्यान देना कि रेटिना जो होता है, यही मेन चीज होती है रेटिना, यही हमको समझना है. रेटिना जो होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. रेटिना कंसिस्ट फोटो रिसेप्टर सेल्स. These photoreceptor cells are divided into two parts. The first one is the rod cells and second one is the cone cells. Clear?
तो रोड सेल्स और कोन सेल्स का क्या फंक्शन है? तो रोड सेल्स आर द सेल्स विच सेंसिटिव टू कलर्स। किसके लिए सेंसिटिव होती है? कलर्स के लिए सेंसिटिव होती है। ये कहते हैं प्राइमरी कलर्स। इसके लिए सेंसिटिव है, प्राइमरी कलर्स के लिए सेंसिटिव है। ये प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू एंड लास्ट ग्रीन। दीज आर द प्राइमरी कलर्स। ये है प्राइमरी कलर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? हमारी आईज इनको देखती है। यही प्राइमरी कलर्स, तीन कलर ये हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। These colors are mixed to each other and we have to the different types of colors. As you know that or you know don't know. कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि that our eyes can be see or identify approximate 7 lakh types of color. हमारी आंखें लगभग 7 लाख कलर्स को अलग अलग पहचान सकती है। उनका नाम हमको भले ही याद ना हो, लेकिन हमारी आंखें ये बता सकती है कि दो सेम टाइप ऑफ कलर्स में कितना फर्क है, चाहे वो हल्का हो चाहे वो गहरा हो। क्लियर? तो आवर आईज कैन आइडेंटिफाई 7 lakh कलर्स, 7 lakh, approximately 7 lakh colors. So how these 3 colors produce the 7 lakh colors? This is the amazing things. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि 7 लाख रंगों को कितने अच्छी तरह पहचानती है हमारी आंखें, पहचान सकती है सिर्फ इन 3 कलर्स के बलबूते पर। और इन्हीं 3 कलर्स को कौन रेस्पॉन्स कर रहा है, कौन बता रहा है? सिर्फ रॉड सेल्स ही बता रही हैं। क्लियर? नाउ कम टू कोन सेल्स। अब कोन सेल्स का काम क्या है? कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइटनेस, रोशनी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? रोशनी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और वी आर एबल टू सी इन द डिम लाइट ऑल्सो, इट इज ड्यू टू द कोन सेल्स। हमारी आंखें जो हैं वो सेंसिटिव होती है। किसके लिए सेंसिटिव होती है? ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिव होती है। उसी ब्राइटनेस को, ये रोशनी को कौन कैच करता है हमारी आईज के अंदर? कौन सा फोटोरिसेप्टर सेल कैच करता है? दैट इज बाय द कोन सेल। कौन करता है? कोन सेल करता है। और कौन सेल सेंसिटिव होता है ब्राइटनेस का, रोशनी के लिए। और वी आर एबल टू सी इन द डिम लाइट। डिम लाइट में भी हम लोग कई बार देख सकते हैं, बहुत आसानी देख सकते हैं। बहुत कम रोशनी में भी हम लोग किसी चीज को बहुत क्लियरली और अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं या देखने का संभावना कर सकते हैं। दैट इज ड्यू टू द कोन सेल्स। वही कोन सेल्स के कारण पॉसिबल होता है। हम लोग कलर्स नहीं देख सकते डिम लाइट में, बट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। भाई हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, दे आर द सम, हम लोगों को बिल्कुल अंधेरा कभी भी महसूस नहीं होता। वी आर एबल टू सी सम ब्राइट, हम लोग को कुछ हल्की फुल्की रोशनी ऐसे आसपास महसूस होती है बिल्कुल अंधेरे में। दैट इज ड्यू टू दैट कोन सेल्स। वही कोन सेल्स के कारण आई बात आपको समझ में? तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल दैट इज प्रेजेंट इन द रेटिना। और रेटिना के अंदर ही एक पार्ट होता है दैट ऑन विच द इमेज इज फॉर्म, जिसपे इमेज बनती है वहीं पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है इन सेल्स का। These are in front of the lens beyond the retina, that is called yellow spot. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। That yellow spot is called the white phobia. Sorry, not a phobia. This is only yellow spot. You have to learn only yellow spot. तो yellow spot बोला जाता है उसको, और yellow spot ही वही जगह है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। As you see, I make a some deep structure on it. उसको छोटा सा डीप स्ट्रक्चर सा बना रखा है यहाँ पर, and that part is called yellow spot on the retina at which the image is formed. Now we have to continue with point 9, yellow spot. Now come to the next point, that is called blind spot. What is the blind spot? भाई दीवार तो पूरी है, एक छोटे से पार्ट पे पिक्चर चल रही है,
बाकी पार्ट का काम क्या है? बाकी पार्ट का काम कुछ नहीं है. इट हैव ए ब्लैंक पार्ट, इट हैव नो रेस्पॉन्स टू द इमेजेस, दैट पार्ट इज कॉल्ड ए ब्लाइंड स्पॉट. उसी पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. लेकिन फिर भी उसका एक फंक्शन है. भाई हम लोग दीवारों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम लोगों के दीवारों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इट कंसिस्ट द फैन, इट कंसिस्ट द डिफरेंट थिंग, इट हेल्प इन द हैंगिंग ऑफ दैट कर्टेन और दैट सेल्स. इसके अंदर बात करें तो सेल्स को हैंग रखने के लिए जगह प्रोवाइड करती है. बट द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट इज इट कंसिस्ट द ऑप्टिक नर्व्स, और कह सकते हैं रेटिनल गैंग्लियंस. इसके अंदर ये रेटिनल गैंग्लियंस होते हैं जो बाइपोलर सेल के बने होते हैं. कौन सी सेल के? बाइपोलर सेल्स. बाइपोलर सेल्स मतलब विच हैव द टू न्यूक्लियस और टू हेड, इसके दो हेड. तो इस तरह की सेल्स है. तो रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. रेटिना के अंदर येलो स्पॉट होता है जहाँ इमेज बनती है. जब इमेज बनती है तो दे प्रोड्यूस ए सिग्नल्स, तो उसके अंदर सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं. दैट सिग्नल्स आर कॉल्ड एज ए मैसेजेस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो येलो स्पॉट से जाते हैं और येलो स्पॉट से होते हुए आप ब्लाइंड स्पॉट पे आते हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट इज द ऑप्टिकल नर्व्स. ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं वो ओके, द नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिकल नर्व्स. तो जो मैसेजेस हैं अब उसको ले जाने के लिए हम लोग को पाथवे जरूरत होती है ताकि उसको इजीली ब्रेन तक पहुंचाया जा सके. और ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो पाथवे है, जो वायर लाइन है, और जब जो नर्वस सिस्टम हमको दिया है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल नर्व्स. वो ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं? मैसेज को लेती हैं. मैसेज कौन लेता है? मैसेज तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स ले लेते हैं. उसमें हमको कलर पता लग जाता है, हमको ब्राइटनेस पता जाती है, हमको इमेज बन जाती है. इमेज बनने के बाद वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं. एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर गोज टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्टिकल नर्व्स, द ऑप्टिक नर्व्स. इन्हीं ऑप्टिक नर्व्स की वजह से ही ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है. एंड ब्रेन इज रेस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस, और उसी को ब्रेन स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को ये कह सकते हैं, उस फॉर्मेशन ऑफ इमेज को महसूस करता है. एंड जैसे ही वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ब्रेन में होती है, इट गिव अस द सिग्नल दैट यू हैव टू सी द ऑब्जेक्ट, और वही हमको चीजें दिखाती है. अगर मैं इसको एक डायग्राम के रूप में बनाता हूँ, दैट वी हैव टू मेक इज जस्ट लाइक दैट, तो मैं उसको इस तरह से बनाऊंगा. देयर इज स्मॉल आई, ये एक आई को रेस्पॉन्स कर रहा है. ये आई होगी, इसके अंदर ये लेंस हो गया, ये ऑप्टिक नर्व्स हो गई. यहाँ पे क्लियर. यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लो ट्री का ऑब्जेक्ट है. ये ट्री के ऑब्जेक्ट से इमेज है वो इस पे बन रही है. लाइट इससे टकरा के इस पे आ रही है. मान लीजिए यहाँ से सनलाइट है, बहुत दूर है तो मैंने बहुत नजदीक बना दिया इसको. ये सन है, सन से लाइट आ रही है. अब लाइट डायरेक्ट तो आती नहीं है हमारे ऊपर. आंखों में लाइट अगर हम सन की लेते हैं तो धीरे धीरे डैमेज होगा. इफ वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम कैसे देख पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट हम किसी रोशनी की हेल्प से ही देख सकते हैं. तो वही जो रोशनी है, ये सनलाइट है और कोई बल्ब लाइट है और ट्यूब लाइट है, दैट शो या और दैट पुट ऑन और दैट फ्लैश ऑन ए ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइट पहले गिरती है, देन लाइट इज रिफ्लेक्टेड टू आवर आई. उसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है. तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से. पहले लाइट किस पे आई? ऑब्जेक्ट के ऊपर आई. उसके बाद लाइट किसके पास गई? हमारी आईज के ऊपर आ रही है रिफ्लेक्ट होके. उसके बाद रिफ्रैक्शन होता है. देयर इज ए रिफ्रैक्शन. क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ. रिफ्रैक्शन होके लाइट हमारी रेटिना के ऊपर बन गई. हमारे आईज के रेटिनल पार्ट पे वो इमेज बन गई. यहाँ पे वो इमेज बन गई है, आप लोग महसूस कर सकते हैं. इमेज कैसे बनेगी? अगर मैं इसको जूम करके देखता हूँ ऑन जूमिंग, ये मैंने इसको जूमिंग किया है, जूम किया है. अगर यहाँ पे महसूस करता हूँ यहाँ पे इमेज कैसी बनी होगी, तो इमेज जस्ट लाइक ऐसे बनी होगी. इमेज
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। भाई कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। व्हाट कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। दैट लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस। ध्यान से समझना, हमारी आईज में कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है। दैट प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड रियल। कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन आवर आई। और रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी बनती है, हमारी आईज पे उल्टी बनती है। तो इसका मतलब रेटिना के ऊपर भी कोई इमेज बन रही है, वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। ध्यान देना इस चीज को कि आवर आई रेस्पॉन्स टू द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ओनली, बट वी आर हाउ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट। हम लोग आई, जो हमारी आईज है या हम लोग जो चीज देख रहे हैं वो हमको वर्चुअल कैसे दिखाई देती है, इट इज ड्यू टू द ब्रेन, इट इज ड्यू टू द ब्रेन। जैसे यहाँ पे इमेज बनेगी दैट प्रोड्यूसेस सिग्नल्स, यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस होने लग जाएंगे ड्यू टू द फोटोरिसेप्टर सेल्स एंड दिस फोटोरिसेप्टर सेल्स सेंड द मैसेज टू द ऑप्टिक नर्व। इसको भेज दिया, ऑप्टिक नर्व को भेज दिया, ऑप्टिक नर्व इसको ब्रेन के पास लेके जाएगी। ये हमारा ब्रेन है। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ऑप्टिक पार्ट है। इसके पास लेके गई, इसके पास लेके गई तो यहाँ पे इमेज जो होगी वो कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। और जो हमारा ब्रेन हमको दिखाता है, ये हमारा ब्रेन ग्रहण करता है, ये लेता है, वही चीज हमको दिखाई देती है। तो वी हैव टू सी, हम लोग देखते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज, लेकिन हमको इमेज कैसे दिखाई देती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, कैसी दिखाई दे रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई दे रही है। वापिस समझ लीजिए, हाउ आवर ब्रेन रेस्पॉन्ड, हाउ वी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। कैसे देखते हैं, सनलाइट या कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट सबसे पहले रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज के कॉर्निया से पास होते हुए, कॉर्निया से पास होते हुए, प्यूपिल से पास होते हुए, लेंस से पास होते हुए इमेज को कहाँ बनाएगी, येलो स्पॉट पे बनाएगी जो रेटिना के ऊपर प्रेजेंट है। रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। दिस फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है वो इमेज के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके कौन जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स लेके जाएंगी। ऑप्टिक नर्व्स जब इमेज बनी तो कैसी बनी थी, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन जैसे ही ऑप्टिक नर्व उसको लेके जाती है हमारा माइंड उसको वर्चुअल कर देता है, हमारा माइंड उसको सीधा कर देता है। दैट इज प्रोड्यूस ए वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज और वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट, और हम लोग ऑब्जेक्ट को सीधा देख पाते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे चीजों को समझने के लिए यही है कि हमारी आईज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का फंक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है, एक दूसरे की किस तरह से हेल्प करते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। दिस इज द मैसेज फॉर यू। तो यू हैव टू वर्क फॉर अदर्स, हेल्प अदर्स। ये कोरोना का टाइम है, इसमें आप जब जैसे आप लोगों को हो सके गरीब लोगों की और जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। ये मैसेज है। आपका चैप्टर भी हुआ, आपको एक मैसेज भी मिला। ओके, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल as much as possible to your friends, to your family, to the students. Thank you for watching very much.